میری موت کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ مجھے اس کمرے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ویسے بھی اب میں نہایت بہتر حالت میں تھا۔ میرے لیے میک اپ کا سامان منگوا دیا گیا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ میری صورت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب میں زخمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محل کے ایک فرد کی حیثیت سے محل کے ایک گوشے میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن نے وہ ڈرامہ شروع کر دیا جس کی ہدایت میں نے انہیں کی تھی اور جو میری ڈائریکشن میں ہو رہا تھا۔ ایک لاش حاصل کر لی گئی۔ مجھے اس کے چہرے کا معائنہ کرایا گیا۔ بلا شبہ بہت ہی بھیانک صورت ہو گئی تھی اس کی، لیکن وہ شخص جسامت میں میرے جیسا ہی تھا۔ جنرل ٹیرس نے بتایا کہ اس شخص کا نام یوراگوئے ہے اور یہ پرتگال کا باشندہ ہے۔ یہاں سیاحت کے لیے آیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد گوئٹے ہل کے اخبارات میں علی یار خان کی موت کی خبریں چھپیں۔ 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ جنرل ٹیرس نے اخبارات کو ایک خصوصی مضمون لکھ کر دیا جس میں میری خدمات کا اعتراف کیا گیا تھا اور مجھ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا تھا۔ سرکاری پیمانے پر میری تدفین کا بندوبست کیا گیا اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل نے خود مجھے بھی اس تدفین میں شریک رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک شاندار تابوت میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن بھی اس تدفین میں شریک تھے۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ گوئٹے ہل کے بے شمار افراد اس جنازے میں شریک تھے اور سب کے سب سوگوار تھے کیونکہ میں جنرل ٹیرس کا قریبی تھا۔ تدفین کے بعد میں محل میں واپس آ گیا۔ اس رات کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے پرمذاق گفتگو کرتے رہے۔ جنرل ٹیرس نے کہا، اس کام کی تکمیل تو اب ہو گئی۔ ویسے بھی اگر اولیو ہاورڈ تمہاری لاش کو قبر سے نکال کر دیکھے گا تو اسے الجھن ہی سے دوچار ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تم نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ پہلا مرحلہ تو تکمیل تک پہنچ گیا، یعنی علی یار خان مر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں تنظیم آزادی فلسطین بھی تم سے رابطہ قائم کر لے گی، لیکن کسی بھی طور اس بات کا اظہار مت کرنا کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ جنرل ٹیرس نے کہا، یقیناً میں جانتا ہوں، ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا، اب جنرل ٹیرس یہ بتاؤ گرے سٹون کی سارڈان میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ بولا، وہاں پر کیمپ ختم کر دیا گیا ہے اور گرے سٹون کے تمام افراد کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا گرے سٹون میں شامل افراد کی قومیتوں کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات ہیں تمہارے پاس؟ جنرل ٹیرس نے کہا، نہیں، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ البتہ گرے سٹون کی حمایت میں کچھ کارروائیاں بیرونی ممالک سے بھی کی جا رہی ہیں جن میں خاص طور سے بیلجیم سر فہرست ہے۔ میں نے کہا، جنرل، میں گرے سٹون کے سٹاف میں سے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں جو میرے قد و قامت کا ہو تاکہ میں اس کی جگہ لے سکوں۔ کیتھی براؤن نے ہونٹ سکیڑے۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ بولی، گویا تم؟ میں نے کہا، ہاں، میں گرے سٹون کے سٹاف میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ اولیو ہاورڈ اور موشے ہرموس کی خباثتوں سے آگاہ ہو سکوں۔ ممکن ہے اس طرح میری پہنچ تل ابیب تک ہو جائے اور میں وہاں پہنچ کر اولیو ہاورڈ کے اطراف اپنا دائرہ تنگ کر سکوں۔ تمہیں شاید اس بات کا علم ہو کہ CIA سے نکالے جانے کے بعد وہ مستقلاً اسرائیل پہنچ گیا ہے اور وہیں قیام پذیر ہے۔ جنرل ٹیرس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، علی، میں تمہاری ذہانت کا قائل رہا ہوں۔ تمہاری ترکیب لاجواب ہے۔ ان لوگوں کی قومیتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ آخر ان لوگوں کے پاس ان کے شناختی کاغذات تو ہوں گے ہی۔ میں نے کہا، یقیناً، اور ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ تم خود ان میں سے کسی شخص کا انتخاب کرو گے اور اس کے بعد اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ گے۔ اس کے بعد مجھے اس کی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ اس طرح سے میرے تل ابیب پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ جنرل اور کیتھی براؤن اس موضوع پر مجھ سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھر جنرل نے کہا کہ وہ بذات خود اس کام میں دلچسپی لے کر میرے اس مقصد کی تکمیل کرے گا۔ میں نے جنرل کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ میں اطمینان سے محل میں آرام کرتا رہا۔ زخم تقریباً ٹھیک ہی ہو گئے تھے۔ 5ویں یا 6 دن جنرل نے ایک رات کو مجھے اطلاع دی کہ اس نے اس شخص کا انتخاب کر لیا ہے جس کی جگہ مجھے لینی ہے۔ دوسرے دن دوپہر میں اس شخص کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا۔ شکل صورت کا اچھا خاصا مگر چہرے سے الجھا ہوا نظر آتا تھا اور اس کی وجہ بہرحال میں جانتا تھا۔ گرے سٹون اس وقت مصیبتوں کا شکار تھی۔ اس کے تمام افراد کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور وہ سب پریشان تھے۔ ایسی حالت میں کسی ایک شخص کا گوئٹے ہل کے محل میں آنا اس کے لیے واقعی حیرت انگیز ہو سکتا تھا۔ کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ یہ مسٹر ڈینس پال گولڈے ہیں، گرے سٹون میں انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ آپ کو ان سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی۔ میں نے ڈینس پال کو بغور دیکھا۔
जनरल का इंतखाब काबिल दाद था। उसके खद्दोखाल मुझसे मिलते हुए तो नहीं थे, लेकिन मैं आसानी से उसके उन खद्दोखाल को अपना सकता था। जिसामत में कोई फ़र्क नहीं था। मैंने पुरतपाक अंदाज में उसका खैर मकदम किया, उसे हाथ मिलाया और उसे बैठने की पेशकश की। वो बोला, मैं आपका ममनून हूँ, लेकिन मुझे किस लिए बुलाया गया है? मैंने कहा, दर हकीकत हमें आपकी ज़रूरत थी मिस्टर डेनिस। बोला, किस सिलसिले में? मैंने कहा, दरअसल ग्रेस्टोन में हमें ऐसे कुछ साहिब हैसियत लोगों की तलाश है जो हमारे एक ख़ास मकसद की तकमील कर सकें। वो बोला, मैं अगर किसी काम आ सकता हूँ तो हाजिर हूँ। मैंने कहा, लेकिन इससे पहले आपका मुकम्मल तारुफ ज़रूरी है। वो बोला, मेरा नाम आप लोगों को मालूम हो ही चुका है। इंजीनियर हूँ और कानकुनी के काम में तकरीबन 15 साल का तजर्बा रखता हूँ। नौउम्री ही से मैंने इस लाइन को अपनाया था और ग्रेस्टोन में मुझे कदर की निगाह से देखा जाता है। मैंने कहा, यकीनन ऐसी ही बात होगी मिस्टर डेनिस। आपका ताल्लुक कहाँ से है? वो बोला, इससे पहले मैं यूगोस्लाविया में था। नस्लन मैं वहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, लेकिन तवील अरसे से मेरे वालिदैन वहीं मुकीम थे और उसके बाद हम लोग इसराइल पहुँच गए। नस्लन हम ज्यू ही हैं। मैंने कहा, बहुत खूब। अब क़याम कहाँ है आपका? मेरा मतलब है, अब आपका ख़ानदान कहाँ है? वो बोला, मेरे ख़ानदान में चंद ही अफराद हैं, मेरी बीवी हैली गोल्डे और मेरी 2 बहनें। बस अब यही हमारा कुल ख़ानदान है। मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ और उन लोगों से मुलाकात कम ही होती है। मैंने कहा, खूब। तेल अवीव में आपकी क़यामगाह किस जगह है? डेनिस ने इस सिलसिले में मुझे तफसीलात बता दी। फिर मैंने पूछा, अगर आप ज़्यादातर अपने वतन से बाहर रहते हैं तो फिर तेल अवीव में आपके शिनासाओं की कमी होगी। वो बोला, हाँ, इत्तेफाक है कि मैं ज़रा तन्हाई पसंद हूँ और ज़्यादा दोस्तियाँ वगैरह नहीं करता। मेरे ताल्लुकात बहुत कम लोगों से हैं। मैंने कहा, ग्रेस्टोन में आपने कब शमूलियत इख्तियार की? वो बोला, 10 साल गुजर गए हैं और मैं ग्रेस्टोन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर चुका हूँ। मैंने पूछा, कितने अरसे से आप तेल अवीव नहीं गए? वो बोला, इस बार तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। 7 माह से मैं तेल अवीव नहीं जा सका, लेकिन अब मेरा इरादा है कि यहाँ से तेल अवीव जाऊँगा और कुछ वक्त वहाँ गुजारूंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर पॉल गोल्डे, आपको यकीनन तेल अवीव ही जाना चाहिए। क्या इस सिलसिले में आपने अपने ऑफिसर्स वगैरह से बात कर ली है? वो बोला, जी हाँ। दरअसल अगर हम सार्डान में काम करते रहते तो मुमकिन है उस वक्त तक मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त न मिलती जब तक कि ये काम मुकम्मल ना हो जाता। लेकिन इस बात का फैसला बहुत पहले कर लिया गया था कि सार्डान के काम की तकमील के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को 3-3 माह की छुट्टियां दी जाएंगी। और मैंने अपने अहले ख़ानदान को यही लिखा था कि वक्त का तयन तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद मैं कम से कम 3 माह के लिए तेल अवीव पहुँचूँगा। मैंने कहा, बहुत खूब। अब आप ये बता सकेंगे मिस्टर डेनिस पॉल कि ग्रेस्टोन के सरबराहों ने सार्डान में काम ख़त्म होने के बाद अपने बारे में क्या फ़ैसला किया है? वो बोला, दर हकीकत हम तो इस बात पर परेशान हैं कि प्रोजेक्ट ख़त्म करके हमें नज़रबंद क्यों किया गया है। हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे। हमें बाकायदा यहाँ कानकुनी का ठेका दिया गया था और उसके बाद अगर ये ठेका मनसूख भी कर दिया गया था तो हमारी नज़रबंदी का क्या जवाज़ है? मैंने कहा, क्या ग्रेस्टोन के मुअज़्ज़िज़ अराकीन इस सिलसिले में किसी सरकारी सतह की कार्रवाई का इरादा रखते हैं? वो बोला, इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि हमें इत्तला मिली है कि मोशे हरमूस जो ग्रेस्टोन के मालिक हैं इंतकाल कर चुके हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रेस्टोन कायम रहेगी या नहीं, और अगर कायम रहेगी तो उसे कौन संभालेगा। इस सिलसिले में कोई बात हमें नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या आप लोगों को यकीन है कि आपकी नज़रबंदी ख़त्म हो जाएगी? वो बोला, हाँ, यकीनन, हमने कोई जुर्म नहीं किया, और अगर कोई बात जुर्म की हैसियत रखती भी है तो कम से कम आम कारकुनों से उसका ताल्लुक नहीं है, और इसके लिए सिर्फ मालिकान ही जिम्मेदार करार पाते हैं। चुनांचे हमें यकीन है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। मैंने कहा, बहुत खूब। और ये आज़ादी मिलने के बाद मिस्टर डेनिस, क्या आप सीधे तेल अवीव का रुख करेंगे? वो बोला, मेरी दरख्वास्त मेरे अफसरान के पास मौजूद है। अगर हमें फ़ौरन ही कोई ऐसा काम नहीं सौंपा गया जो इंतहाई ज़रूरी हो तो फिर तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि मुझे 3 माह की तवील छुट्टी दे दी जाए। मैंने कहा, आपको यकीन है कि आपकी ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी? वो बोला, इम्कानात तो हैं, क्योंकि 7 माह से मैं तेल अवीव वापस नहीं गया। मोहतरम, क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इन सवालात का मकसद क्या है? मैंने कहा, अभी कुछ और सवालात बाकी हैं, उसके बाद आपको तफसील भी बताई जाएगी। वो बोला, ठीक है। मैंने कहा, गोया आपके अहले ख़ानदान में सिर्फ यही 3 अफराद हैं? आपकी बहनों की उम्र क्या है? वो बोला, अंदाजे के मुताबिक एक 18 साल की है और एक 22 साल की। मैंने पूछा, और आपकी बीवी? बोला, जाहिर है उसकी उम्र मेरी उम्र से ही मुताबिकत रखती है। मैंने पूछा, इसके अलावा आपके दोस्त और मज़ीद अहले ख़ानदान? वो बोला, चंद अफराद हैं जिनसे मेरा ज़्यादा रब्त नहीं है। मैंने कहा, आपकी बीवी के अहले ख़ानदान, क्या वो भी तेल अवीव ही से ताल्लुक़ रखते हैं? उसने कहा, वो एक हादसे में हलाक हो चुके हैं और अब हैली तन्हा है। गमज़दा रहती है उनके लिए, लेकिन जाहिर है मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर डेनिस। दर हकीकत सूरत हाल ये है कि मैं आपकी हैसियत से तिल अवीव जाना चाहता हूँ और वहाँ आपके घर में रहकर कुछ ऐसी कार्रवाई करने का ख्वाहिशमंद हूँ जो मेरे मफाद में है। उसने मुतहय्यराना अंदाज में सवाल किया, क्या मतलब? मैंने कहा मतलब वही है जो आपसे कहा गया है। डेनिस पॉल अहमकों की तरह हम तीनों की सूरतें देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ के आसार नजर आए। बोला, लेकिन तुम? मैं? जनरल टेरिस ने बेरहमी से कहा, मिस्टर डेनिस पॉल गोल्डे, आपके बारे में यही फैसला किया गया है कि आपको हलाक कर दिया जाए ताकि किसी किस्म का कोई खदशा न रहे। डेनिस पॉल के बदन में थरथरी पैदा हो गई। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है? देखिए, दरअसल जनरल टेरिस ने कहा, इसमें कुछ तरमीम भी की जा सकती है मिस्टर डेनिस पॉल। वो ये कि कम से कम 3 माह तक आप हाथ पांव हिलाए बगैर हमारे कैदी रहें। ये 3 माह गुजारने के बाद आपको यहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन आप गोली के निशाने पर होंगे। जिस जगह आपको कैद किया जाएगा वहाँ आपको तमाम आसाइशें भी फराहम की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने फरार होने की कोशिश की या कोई और हरकत की तो फिर वही सब कुछ होगा जो इस वक्त आपके साथ किया जा सकता है। वो बोला, नहीं, आप लोग अगर मुझ पर एतमाद कर सकते हैं तो कर लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा वादा है। वो खौफ से निढाल हो गया था। मौत के खौफ ने उसे जर्द कर दिया। जनरल टेरिस ने मेरी सूरत देखी और मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी, गोया मैं जनरल टेरिस के सारे प्रोग्राम से मुतमईन था। डेनिस पॉल गोल्डे को वहां से ले जाकर एक तहखाने में बंद कर दिया गया और उसके बाद जनरल टेरिस ने मुझसे मुलाकात की। बोला, तुम मुतमईन हो अली? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। उसने कहा, तो मेरे ख्याल में तुम्हें अपने काम की तकमील कर लेनी चाहिए। उसका कैंप से ज्यादा अरसे गायब रहना मुनासिब नहीं है। मैंने इंतहाई खुफिया तौर पर उसका इंतखाब किया और फिर उसे अगवा कर लिया। अब उसे उसी जगह छोड़ा जा सकता है जहां दूसरे लोग नजरबंद हैं। मैंने कहा, मुझे मेकअप का सामान दरकार है। जनरल टेरिस ने कहा, वो मौजूद है। कैथी ब्राउन कहने लगी, अली, क्या तुम तमाम जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे? मैंने मुख्तसरन कहा, हाँ शायद, और फिर मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। डेनिस पॉल का मेकअप करने में मैंने कमाल किया था। तकरीबन 2 घंटे तक मैं अपने चेहरे और जिसामत की मुरम्मत करता रहा। इस दौरान जरा सी ज्यादती से काम लिया गया था। मैंने अपने सामने डेनिस पॉल गोल्डे को रखा था और पूरी तरह उसके बदन और चेहरे का जायजा लिया था ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए। मैंने वो तमाम निशानात भी चेक किए जो डेनिस पॉल गोल्डे के बदन पर थे। मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। ये तमाम निशानात अब मेरे बदन पर भी मौजूद थे और मैं 100% डेनिस पॉल गोल्डे बन गया था। मैंने डेनिस पॉल गोल्डे की आंखों में शदीद हैरत के आसार देखे। गालिबन वो खुद भी अपनी इस दूसरी शक्ल पर हैरान था। तब मैंने मुतमईन होकर मेकअप का ये काम खत्म कर दिया। उसके बाद मैं जनरल टेरिस से मिला तो वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ। बोला, मेरे खुदा, तुम अली हो या डेनिस पॉल? मैंने कहा, मैं अली ही हूँ। वो बोला, आवाज भी वही है। कैथी, जरा इधर आओ। कैथी उस वक्त कहीं और थी, लेकिन वो अंदरूनी दरवाजा खोलकर उसी कमरे में आ गई। जनरल टेरिस ने कहा, देखो ये कौन है? कैथी मुझे ताज्जुब से देखने लगी। बोली, अगर ये अली है तो मुझे ताज्जुब नहीं है। ये ऐसी ही अनोखी शख्सियत है जनरल। मेरा इससे वास्ता तुमसे बहुत पहले से रह चुका है। टेरिस ने कहा, कमाल का मेकअप है, कमाल का। लेकिन इस बात का इंतहाई दुख है अली कि अब तुम हमसे जुदा हो रहे हो। मैंने कहा, हाँ जनरल, तुम्हारी मेहरबानियों से मैं अपना मकसद पाने में कामयाब हो गया तो बहरतौर उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अब मुझे उस जगह पहुंचा दो जहां से उस शख्स को अगवा किया था। जनरल टेरिस ने कहा, मेरा खुद जाना मुनासिब नहीं है, वरना मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आता। दरअसल हम लोगों ने उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर रखा है। मैं तुम्हें वहीं पहुंचाए देता हूं जहां से इस शख्स को उठाया गया था। मैंने कहा, ये बात कहना तुमसे बिल्कुल मुनासिब नहीं है जनरल के इस शख्स की बेहतर निगरानी पर ही मेरी जिंदगी का दारोमदार होगा। जनरल टेरिस ने मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जिंदा रहोगे अली, इत्मीनान रखो। उसके बाद मैं महल से बाहर निकल आया। मुझे एक बंद गाड़ी में ले जाकर एक इमारत के करीब छोड़ दिया गया। यहाँ से इमारत के अक़बी हिस्से से मुझे खुद ही अंदर दाखिल होना था। जनरल वगैरह से मैं महल ही से रुखसत होकर आया था। थोड़ी देर के बाद मैं डेनिस पॉल की हैसियत से अंदर पहुंच गया। यहाँ तकरीबन 9 अफराद मुकीम थे। इमारत खासी बड़ी और पुरानी तर्ज की थी। मुझे तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी थी। चुनाचे अपनी रिहाइश गाह तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत पेश न आई और दूसरों की निगाहें बचाकर मैं वहां दाखिल हो गया। काफी देर तक मैं अपने कमरे में कैद रहा। मैंने उसकी एक एक शय की तलाशी ले डाली। एक सूटकेस था जिसमें काफी सामान मौजूद था। करेंसी थी, कुछ तस्वीरें थी जिन्हें मैंने निकाल लिया और बगौर उनका जायजा लिया। 2 लड़कियां एक तस्वीर में यकजा थीं, दूसरी तस्वीर अलग थी। मैंने उन लड़कियों के चेहरे में अपने खद्दोखाल तलाश कर लिए।
यानी डेनिस पॉल के। यकीनन ये उसकी बहनें थीं। दूसरी उसकी बीवी हो सकती थी, हेली गोल्डे। इनसे अच्छी तरह रोशनास होने के बाद मैंने तस्वीरों को एहतियात से रख दिया और उसके बाद एक आराम कुर्सी पर दराज हो गया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स कॉफी की 2 प्यालियां हाथ में लिए हुए अंदर दाखिल हुआ और उसने मुझे देखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे तुम डेनिस? मैं 2 बार तुम्हारे कमरे में आ चुका हूँ। मैंने कहा, मर जाने की हद तक बोर हो रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि अब हमारा क्या होगा। आखिर ये क्या बेतुकी बात है। हमने कोई जुर्म तो नहीं किया, और अगर जुर्म किया है तो उसके जिम्मेदार तो दूसरे लोग हैं। हम आखिर यहाँ कब तक नजरबंद रहेंगे? मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। वो शख्स बोला, तुम ही क्या डियर, हर शख्स बुरी तरह परेशान है। हम नहीं समझते कि हमारी नजरबंदी का क्या जवाज है, लेकिन इन स्याहफामों का क्या किया जाए जो अक्ल से हमेशा ही पैदल होते हैं। मैंने कहा, आखिर कोई कुछ कर तो रहा होगा। मोशे हरमूस भी अब इस दुनिया में नहीं है जो हमारे लिए कुछ करें। हमारी ये नजरबंदी कब तक बरकरार रहेगी और इसका क्या जवाब है? वो शख्स बोला, मेरे ख्याल से इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मैंने कहा, मैं सीधा तिल अवीव जाना चाहता हूँ। वो शख्स बोला, और मैं अपने घर। तुम यकीन करो, मुझे भी अपने घर से जुदा हुए काफी अरसा गुजर चुका है। वैसे मिस्टर कॉर्नेल आज रात जनरल टेरिस से मुलाकात करना चाहते हैं। यकीनन कोई काम की बात हो जाएगी। समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या। ग्रेस्टोन कायम रहेगी या खत्म हो जाएगी? मोशे हरमूस की मौत ने सारा काम बिगाड़ दिया है। सुना है उन्हें कत्ल किया गया है। मैंने कहा, क्या मालूम, कौन जानता है। हकीकत हम लोगों तक कहाँ पहुँचती है। वो बोला, वैसे ये तमाम कार्रवाई थी ही गलत। मैं तो इब्तिदा ही से इसका मुखालिफ था। मैंने कहा, हमें जो कुछ करना होता है दूसरों की मर्जी करना होता है। वो बोला, लेकिन इसके खतरात तो हम ही को भुगतना पड़ते हैं। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो शख्स काफी देर तक मेरे पास बैठ रहा। डेनिस के बेतकल्लुफ दोस्तों में मालूम होता था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। मिस्टर कॉर्नेल के बारे में उसने कहा था, लेकिन मैं उन्हें भी नहीं जानता था। हालांकि अली की हैसियत से जब मैं कैंप में मुकीम था तो बहुत से अफराद से मेरा तारुफ हो चुका था, लेकिन मिस्टर कॉर्नेल उसमें शामिल नहीं थे। ये रात सुकून से गुजर गई। कोई उलझन पेश नहीं आई। उन लोगों में मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया था। दूसरे दिन सुबह उस शख्स ने मुझे जगा कर खुशखबरी सुनाई। बोला, हमारी नजरबंदी खत्म कर दी गई है और हमें गोइटे हिल से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई है। मैंने भी मुसरत का इजहार किया, कहा, वेरी गुड। वो बोला, मिस्टर कॉर्नेल ने रात को जनरल टेरिस से मुलाकात की थी और जनरल टेरिस ने खुसूसी तौर पर उन्हें इजाजत दे दी कि अपने साथियों को वहां से निकाल ले जाएं। अब इसके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त किया जा रहा है। मेरा ख्याल है हम यहाँ से किसी करीबी मुल्क जाएंगे और फिर वहां से हमारे अपने अपने ठिकानों पर रवानगी का बंदोबस्त हो जाएगा। उस शख्स का कहना दुरुस्त था। बहुत सारे ट्रकों और जीपों का एक काफिला गोइटे हिल से चल पड़ा। मैं भी साथ ही था। हम लोग खुशियां मना रहे थे और मैं भी उनकी खुशियों में बराबर का शरीक था। मैंने मिस्टर कॉर्नेल को देखा। उनके बारे में मुझे मालूमात हासिल हो गई थी। ये ग्रेस्टोन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अच्छी शख्सियत का मालिक था ये शख्स। नस्लन क्या था ये मुझे नहीं मालूम था। बहरहाल अब मेरी वाकफियत भी उन लोगों से होती जा रही थी। हमें एक तवील सफर के बाद गोइटे हिल की सरहद छोड़ना पड़ी और एक और छोटे से अफ्रीकी मुल्क में दाखिल होना पड़ा, जो बाहर तौर उन लोगों के लिए खासा बेहतर साबित हुआ। ग्रेस्टोन की तरफ से ही मुख्तलिफ होटलों में हमारे क़याम का बंदोबस्त किया गया और वहाँ हमें तकरीबन 7 या 8 दिन गुजारने पड़े। मैंने एक मीटिंग में मिस्टर कॉर्नेल से दरखास्त की कि मैं तिल अवीव जाने का ख्वाहिशमंद हूँ और वो छुट्टी जो सरडान के प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मेरे लिए मंजूर की गई थी अभी से शुरू कर दी जाए। मिस्टर कॉर्नेल ने होंठ सुकेड़ कर कहा, तमाम ही लोगों को उनके घरों को जाने की इजाजत दे दी गई है क्योंकि फिलहाल हमारे सामने कोई नया मंसूबा नहीं। आपको भी तिल अवीव में आपके नए प्रोग्राम की इत्तला दे दी जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रेस्टोन का ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाचे आप तैयार हो जाइए। हम आपके लिए तिल अवीव जाने का बंदोबस्त कर देंगे। तकरीबन 6 अफराद मेरे सामने और शरीक हो गए और हमारी तादाद 7 हो गई। ये सब तिल अवीव के बाशिंदे थे। मैंने इंतहाई चालाकी से उन सब से तारुफ हासिल किया ताकि तिल अवीव एयरपोर्ट पर उतरते वक्त मैं किसी के लिए अजनबी न रहूं। अपने मंसूबे से मैं पूरी तरह मुतमईन था और अब इस सिलसिले में मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से पहले मैं तिल अवीव में पहुंच जाऊं, वहां कुछ अरसे पुरसुकून रहकर क़याम करूं और उसके बाद अपने नए काम का आगाज करूं। यही फैसला किया था मैंने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।